अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनेद अली और मेरे साथ हैं वसीम अली। आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और भारत के अंदर भी ये रिपोर्ट चलाई जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये चर्चे हो रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और इतने ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग निकले हुए हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि वो इस्तीफा दे दें। बांग्लादेश के अंदर अभी हालात बहुत ही ज्यादा संगीन है। अवाम का सामना करने के लिए पुलिस खड़ी है, वहां पर हमले किए जा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, पुलिस वालों पे हमले किए जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है बांग्लादेश के अंदर। तो आज के मौकों के अंदर आज जुनेद भाई शरंगेजों को इस तरह का मौका मिलता है जैसे वो अपनी शरंगेजी फैलाते हैं, तो इस हालात को, नाजुक हालात के अंदर कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वसीम भाई एक तरफ देखें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को अभी क्या करना चाहिए, निगरान हुकूमत मुंतखब करनी चाहिए। सबसे बेहतर बांग्लादेश के अंदर अभी इलेक्शन का टाइम है और बांग्लादेश की अभी निगरान हुकूमत वहां पर मुंतखब नहीं की गई, तो बांग्लादेश की जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस्लामी जमातें और लोग सड़कों पर निकले हुए हैं कि बांग्लादेश के अंदर आम इंतखाबात के लिए माहौल पैदा किया जाए, जो हो नहीं रहा। तो इसलिए शेख हसीना वाजद से रिजाइन करने का मुतालबा किया जा रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3। Over 100,000 supporters of two major Bangladesh opposition parties rallied in the capital Dhaka on Saturday, the police said, demanding Prime Minister Sheikh Hasina to step down to allow a free and fair vote under a neutral government. Saturday's rallies by the main opposition, Bangladesh Nationalist Party, and the largest Islamist party, Jamaat-e-Islami, were the biggest so far this year and marked a new phase in their protests, with a general election due within 3 months. Sheikh Hasina has been in power for 15 years and has overseen rapid economic growth, with Bangladesh overtaking neighbouring India in GDP per capita, but inflation has risen and her government is accused of corruption and human rights abuses. The resurgent opposition has been mounting protests to press their demands for months, despite the BNP's ailing leader, Khaleda Zia, a two-time premier and old foe of Hasina's, being effectively under house arrest after a conviction on corruption charges. Her supporters poured into Dhaka on Saturday, crammed into buses despite checkpoints on the road into the capital, and even rode on top of packed trains. Vote thief, Sheikh Hasina, vote thief. The protesters could be heard chanting. At least 10,000 police had been deployed to prevent violence, officials said, but officers clashed with hundreds of protesters in the Kakrel neighborhood in front of the city's largest Catholic church, with police firing tear gas and rubber bullets. If Hasina does not step down voluntarily, widely seen as inconceivable, the party has threatened to call more aggressive protests such as strikes and blockades. Western governments have expressed concern over the political climate in Bangladesh, where Hasina's ruling Awami League dominates the legislature and runs it virtually as a rubber stamp. Her security forces are accused of detaining tens of thousands of opposition activists, killing hundreds in extrajudicial encounters, and disappearing hundreds of leaders and supporters. तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जमाते इस्लामी हो, इस्लामी जमातें हों, साथ ही बीएनपी जिसके ऊपर करप्शन के केसेस लगाकर खालिदा जिया को अंदर किया हुआ है, और उसके बाद अब देखें तो बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर मुतालबा क्या किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर 3 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना वाजद को रिजाइन करने की बात कही जा रही है। तो शेख हसीना वाजद को रिजाइन करना चाहिए, इलेक्शन का वक्त मुकर्रर करना चाहिए और इलेक्शन करवाने चाहिए। बांग्लादेश के हालात भी वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के हैं, मतलब कि ओपोजिशन को दीवार से लगा दो, अभी हुकूमत हमारी है तो हुक्म भी हमारा चलना चाहिए। यहाँ पर अगर मिलकर काम करें तो मुल्क की तरक्की के लिए मजीद बेहतर काम किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी चाहिए कि जो जमातें हैं एक दूसरे को कोने से लगाने की कोशिश करती हैं, इनको मिलकर काम करना चाहिए ताकि मिलकर काम करें और मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए।
जैसे आज देखें तो यूरोप के अंदर ऑपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर हुकूमतें की जाती हैं और जुनेद साथ ही भाई, साथ मिलकर काम किए जाते अगर हैं। देखा जाए तो तख्त की जंग जो है वो शुरू से चलती आ रही है और आज भी हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी सोच यही है कि हम मुल्क को उभारने की बजाय मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएं और यहाँ के लोगों को अपना हुक्म सुनाएं और ये कि हो कि हमारा ही सिर्फ यहाँ पर डंका चले। यही बात है कि जैसे 15 साल से पीछे शेख हसीना साहिबा पावर के अंदर है, तो अब उनको चाहिए कि वो इस तरह का इलेक्शन कराएं, जो अपोजिशन है उनको भी इस तरह का मौका मिलना चाहिए। आप ये क्या देखते हैं कि आगे वाली अगर जो यहाँ पर हुकूमत आती है तो कौन सी ऐसी हुकूमत जो पावर के अंदर है वो आ सकती है शेख हसीना के बाद? यार बात पता क्या है, हुकूमत अगर यहाँ पर इलेक्शन करवाती है साफ शफाफ, लोगों को राइट है वोट डालने का, तो यहाँ पे इल्जामात भी लगते हैं। पाकिस्तान में आप देखें तो हर बंदा ये बात कर रहा है कि जी फौज इलेक्शन करवाती है, फौज का रोल होता है इलेक्शन करवाने में और फौज मुंतखब करती है कि किसको हुकूमत देनी है। तो ऐसे में बांग्लादेश के अंदर नजरियात कुछ अलग पाए जाते हैं। बांग्लादेश में नजरियात ये है कि खालिदा जिया को सपोर्ट करता है पाकिस्तान और शेख हसीना को सपोर्ट करता है हिंदुस्तान, और ये बात की जाती है कि शेख हसीना हिंदुस्तान की मदद से मुंतखब होती हैं और पाकिस्तान की ISI का रोल खालिदा जिया की तरफ है, क्योंकि खालिदा जिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाती है और जो शेख हसीना वाजिद है वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाती है। नजरियात अलग है, वहां पर नजरियात ये है और पाकिस्तान में नजरियात ये है कि पाकिस्तान की फौज कंट्रोल करती है कि किसको हुकूमत देनी है और किसको हुकूमत नहीं देनी। अब इसके बारे में मजीद जो तज्जिया है वो तो अब बड़े एंकर दे सकते हैं कि मजीद क्या इसके अंदर हकीकत है, और बातें कहने की है लेकिन हकीकत अब ये और ही हो सकती है या यही हो सकती है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इसी हवाले से? तो मजीद आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।